Hello students, welcome to the chemistry classes. In this class today we will discuss about the unit 16, that is chemistry in everyday life. Okay, so what is the role of chemistry in our life is, so chemistry has penetrated very deeply in our everyday life. For example, chemicals used in medicine, healthcare, different types of dye which makes our cloth beautiful, cosmetics, chemicals used in food preservatives and artificial sweetening agents, detergent, insect repellent, rocket propellant, etc. are some common examples which signify the role of chemistry in everyday life. In the forthcoming discuss, we will shall briefly discuss some of the important chemicals. Okay, so drug and drug targets. Okay, so drug and drug targets. So what are the drugs and drug targets? So one of the most important contribution of chemistry in our society is the medicine and drugs. So the branch of the science which makes use of chemical for the therapeutic effect are called chemotherapy. Okay, so basically what are the drug and medicines? So a drug is a chemical substance of low molecular mass, approximately 100 to 500 atomic mass unit, which exert an abnormal effect on certain body function. It interacts with the micromolecule target and produces a biological response. When the biological response is therapeutic and useful, a drug is referred as the medicine. Okay, so वो ड्रग हमारी क्या कहलाती है? मेडिसिन कहलाती है. So the chemicals which causes therapeutic and biological response and many may be used in the diagnosis and prevention and cure of diagnosis are termed as medicine. So medicines का ये हो गया. ठीक है. Now कम अब मेडिसिन शुड बी, मेडिसिन भी क्या होता है, अलग अलग है. मेडिसिन शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड शुड हैव मैक्सिमम साइड इफेक्ट. ओके, सो इट शुड नॉट cause addiction. For example, heroin has several therapeutic uses, but it causes addiction. Therefore, it is regarded as a drug and not a medicine. On the other hand, the aspirin is a medicine because it is not habit forming. So basically, what is the difference between drug and medicine? So medicines has no habitual effect, but drug has a habitual effect. Okay. So now come on the classification of the drugs. So on the basis, it can be classified in the following criteria. First is on the basis of pharmacological effects. So the classification of drug on the basis of pharmacological effect is useful for the doctors because it provides a complete range of drugs available for the treatment of particular disease. Means पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन या ड्रग का यूज़ होता है, उसको बोलते हैं उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. ठीक है. देयरफॉर डॉक्टर्स यूजुअली क्लासीफाई देम एज एनाल्जेसिक एंड विच हैज पेन किलर इफेक्ट एंड एंटीपायरेटिक्स विच ब्रिंग्स बोथ टेम्परेचर विच ब्रिंग्स बॉडी टेम्परेचर डाउन in high fever, and antiseptic which kills the rest and growth of the microorganism. ठीक है. ओके, एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट्स माइक्रोऑर्गेनिज्म. सो एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो हमारे जर्म्स को और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करते हैं. अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन. So the classification is based on the action of a drug on a particular biochemical process. For example, इसमें हमका जो हमारा जो आता है वो होता है एंटीहिस्टामिन. ये क्या, इसका क्या काम होता है? इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामिन विच रिलीज इन द सेल एंड काजेस एलर्जी. मीन्स एंटीहिस्टामिन क्या करते हैं? एक तरीके का आपका हिस्टामिन है, एक एंजाइम है, वो हमारी सेल्स में रिलीज होता है और जिसकी वजह से क्या होता है? एलर्जी कॉज होती है और इन्फ्लेमेशन बॉडी में होने लगता है, जलन ऐसी होने लगती है. तो उसके एक्शन की बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं. नेक्स्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर की बेसिस पे डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं?
ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर ये हो गया, सल्फोनामाइड हैव द फॉलोइंग कॉमन स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, कि मीन्स हमारी बॉडी में अगर हमने ड्रग को लिया है तो वो जाकर के कहाँ पे टारगेट करेगी, दैट आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल एंड टारगेटेड ड्रग्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है टारगेट ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन कैसे होता है वो हम बात करेंगे। तो ड्रग इंटरेक्ट विद माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। ड्रग का इफेक्ट क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट इन चीज़ों पे होता है। दीज माइक्रोमोलिक्यूल्स परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल प्रोटीन परफॉर्म्स सेवरल रोल्स इन द बॉडी, प्रोटीन एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड काज कैटलाइज and catalyze a large number of psychological reactions occurring in the body is called as enzyme। and some proteins जो होती हैं वो are crucial to communicate system in the body में होती हैं, ठीक है, they are called receptors। and some proteins carry polar molecules across the cell membrane and called as carrier proteins, okay। nucleic acid have a coded genetic information for the cell, lipids and carbohydrates the structural material for the unit of cell of the membrane। so the administered drugs interact with these macromolecules in different way in order to have an idea of drug target interaction। so drug enzyme interaction will be discussed here, okay। so enzyme and as drug target मीन्स एक एंजाइम कैसे एक ड्रग टारगेट के तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहला होता है कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। सो द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस बट हियर वी कैन अगेन डिस्कस इन ब्रीफ फॉर्म। सो हियर यू कैन सी दैट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन द सुटेबल पोजीशन। तो पहला फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको सुटेबल पोजीशन में होल्ड करके रखना। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका कोई मतलब जो है एक्टिव साइट होती है हमारी बॉडी में, ये इसकी एक्टिव साइट कहलाती है, ठीक है। ये हमारा कोई सबस्ट्रेट है और थर्ड जो हमारा डायग्राम है उसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट हेल्ड इन द एक्टिव साइट में जाकर के हेल्ड कर जाता है, उसमें फिट हो जाता है, ठीक है, और अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। So the second function of the enzyme is to provide the functional group which attack the substrate to carry out chemical reaction, and this function is carried out by the amino acid residue of protein present on the active site of the enzyme, okay। so ये conditions में है। फिर क्या होता है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन क्या होता है। तो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन में क्या होता है कि ड्रग जो होता है काउंटर एक्ट एनी ऑफ द अबव फंक्शन ऑफ एंजाइम, they can block the binding site of the enzyme and prevent the binding of substrate to the active site। so the drug which inhibits the catalytic activity of the enzymes are called enzyme inhibitors। मतलब कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी इनहिबिट कर दे, कम कर दे, उनको हम बोलते हैं ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन में ड्रग एंजाइम इनहिबिटर, ओके। नेक्स्ट है ड्रग्स इनहिबिट अटैचमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इन द फॉलोइंग टू डिफरेंट वे। नंबर 1, some drugs themselves possesses a tendency to attach the active site of the enzyme, but such drugs compete with the natural substrate for their attachment on the site of the enzyme and termed as the competitive inhibitors। मतलब जो भी एक्टिव साइट्स आपका होता है वहाँ पे बाइंड करने के लिए हमारा सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के बीच में क्या होता है कंपटीशन होता है। तो ऐसे जब कंपटीशन से जब यह बाइंड करता जाके है इसकी एक्टिव साइट से तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये ड्रग है और ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा कंपटीशन होगा ड्रग में और एक्टिव साइट में, और फाइनली क्या होगा कि जो हमारा ड्रग जा करके इसके एक्टिव साइट से क्या करेगा बाइंड कर जाएगा और अपना रिस्पॉन्स को शो करेगा, ओके। तो ये कहलाता है ड्रग इनहिबिटर। drug and substrate competing for active site of enzyme, the drug blocks the active site of the enzyme। so some drugs prefer to bind to the different site of the enzyme called allosteric sites and instead of binding to an active site। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है कि एक्टिव साइट बाइंड नहीं करती, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह सबस्ट्रेट बाइंड कर जाती हैं जाकर, तो उसको हम एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं, ओके।
अब हम बात करेंगे, ये यहाँ पे दिखाया गया एलोस्टेरिक साइट का कि यहाँ पे एक एक्टिव साइट थी, वहाँ पे ना बाइंड होकर के ये कहीं दूसरी जगह, ये दूसरी साइट है, यहाँ पे जाकर के क्या हो जाता है, ये बाइंड हो जाता है, तो इनको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये कुछ मैटर। फिर रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। तो रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट में क्या होता है कि द प्रोटीन विच आर crucial to body communication process are called receptor. Majority of these receptors are embedded in cell membrane in such a way that their small part possesses active site projects out in the surface of the membrane and the part possessing active site actually opens on outside region cell. तो इनकी जो एक्टिव साइट्स होती है, जो कुछ पार्ट बॉडी के बाहर निकले रहते हैं कोई भी सेल के, तो उस पर जाकर के हमारे क्या करती है, जो आपका सबस्ट्रेट होगा या वैसे ड्रग होगा, वो जाकर के बाइंड करेगा और अपना रिस्पॉन्स को क्या करेगा, शो करेगा। तो उसको हम बोलते हैं ड्रग टारगेट, जो होता है रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। अब नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पे उसी को दिखाया गया है किस तरीके से ये हमारा इंटीरियर सेल था, उस पर बाइंडिंग साइट क्रिएट हुई भी, केमिकल मैसेंजर, ये इन द फॉर्म ऑफ केमिकल हो सकता है आपका केमिकल मैसेंजर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर इन द फॉर्म ऑफ ड्रग आएगा और यहाँ पे इसके साथ ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और अपने रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर बात आती है कि अब कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है कि उस ड्रग के इफेक्ट के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं थेरेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग। सबसे पहले एंटासिड्स, ठीक है, एंटासिड से एंटासिड्स बोलते हैं इनको। तो ये क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच रिमूव एक्सेस एसिड एंड rises the pH to an appropriate level in stomach are called antacids, ठीक है। तो ऐसे मतलब मेडिसिन जो हमारी बॉडी के pH लेवल को जाकर के क्या करें, मेंटेन करें, उनको हम एंटासिड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू।